जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्ममेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान ने कहा, इसलिए केवल अपना कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से जिसे देखो वही भक्त बनकर मेरे साथ चिपटने लगता है, परंतु ऐसा भक्त केवल ज्ञानी ही है जिसका प्रिय विषय केवल मैं ही रहता हूँ। भगवान ने फिर कहना आरंभ किया, हे अर्जुन, बाकी जो और 3 प्रकार के भक्त मैंने तुम्हें बतलाए हैं वे भी अपने स्थान पर अच्छे ही हैं और मुझे भी वे भले लगते हैं, परंतु ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय होते हैं। मन के स्थिर होने का नाम निरोध है। निरोध अवस्था ही ब्रह्म की अनुभूति कराती है। वह सत्य है और सब मिथ्या है। जो सदा निरोध अवस्था में रहता है उसी का कल्याण निश्चित है। वह एक विचित्र अवस्था है जब सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाता है। क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था में रहने का नाम ही ज्ञान है। जब वह ज्ञान सर्वदा बना रहता है तब सब ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में युक्त चित्त योगी सर्वोत्तम गति को प्राप्त करते हैं। फिर देहाभिमान नहीं रहता। सत्य यह है कि मेरा ज्ञान हो जाने पर जो फिर पीछे लौटना ठीक उसी प्रकार भूल जाते हैं जिस प्रकार समुद्र के साथ नदी के मिल जाने पर उसका पीछे लौटना असंभव हो जाता है। और इसी प्रकार जिनके अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली अनुभूति गंगा मेरे स्वरूप सागर में आकर मिल जाती है, उस भक्त को बिल्कुल मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि वह भक्त नहीं है, स्वयं मैं ही हूँ। अब इस बात का और अधिक विस्तार क्यों किया जाए? वास्तविक बात तो यह है कि जो ज्ञानी है वह मेरी शुद्ध चैतन्य और प्रत्यक्ष आत्मा ही है। वास्तव में यह बात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु क्या किया जाए, जो बात नहीं कहनी चाहिए थी वही मैं कह बैठा हूँ। Noble indeed are all these, but I deem the Jnani Bhakta as my very self. For steadfast in mind, he is established in me alone as the supreme goal. Are not the other 3 kinds of devotees dear to the Lord? These are. They are all noble souls, but the wise man, Jnani Bhakta, is exceedingly dear because he has a steady mind. He has fixed his mind on Brahman. He does not want any worldly object, but only the Supreme Being. He seeks Brahman alone as the supreme goal. He is always merged in the self, Atman, and by constant practice becomes identical with the Supreme Self. Therefore, I regard a Jnani Bhakta as my very self. A master is naturally drawn to a servant who serves him wholeheartedly and to the best of his ability. When their mutual love and fidelity get firm-rooted, the master may someday entrust the management of his entire property to the servant. Akin to this act of man, the Lord holds his devotee as his own self. Shri Ram Krishna. Om.
സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 18. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രമേ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും അത്തരമൊരു ഭക്തൻ അറിവുള്ളവനാണ്. അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഞാൻ മാത്രമായി തുടരുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ മറ്റ് 3 തരം ഭക്തരും അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നല്ലവരാണ്. അവരെയും ഞാൻ നല്ലവരായി തന്നെ കാണുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനികൾ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിരതയെയാണ് നാം നിരോധനം അഥവാ നിയന്ത്രണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നിരോധാവസ്ഥ ബ്രഹ്മാനുഭവം നൽകുന്നു. അതാണ് സത്യം. മറ്റെല്ലാം മിഥ്യയാണ്. നിരോധാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേമം ഉറപ്പു നൽകാൻ കഴിയൂ. ഒരാൾ സർവം ബ്രഹ്മമയം ജഗത്താകുമ്പോൾ അത് ഒരു സവിശേഷ അവസ്ഥയാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്യന്തിക കർമാവസ്ഥയെ തുടരുന്നതിനെയാണ് അറിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ അറിവ് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ബ്രഹ്മമായി മാറുന്നു. ഈ രീതിയിൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക അവസ്ഥയിലുള്ള ഏകാഗ്ര യോഗികൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തും. പിന്നെ ശരീരബോധം ഇല്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയ ശേഷം, സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നദിക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ മടങ്ങാൻ മറക്കുന്നവർ എന്നതാണ് സത്യം. അതായത് അവർക്കൊരു മടക്കമില്ല. അതുപോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന ഗംഗയുടെ വികാരം ആരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സമുദ്രത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്, ആ ഭക്തൻ താൻ പൂർണ്ണമായും എൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവൻ ഒരു ഭക്തനല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കണം. കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? സത്യം എന്തെന്നാൽ അറിവുള്ളവൻ എൻ്റെ ശുദ്ധമായ ബോധവും പ്രകടമായ ആത്മാവുമാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 18. ఉదార సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని తత్మైవ మేమతం ఆస్థిత నహి యుక్తాత్మ మామేవానుత్తమాం గతిం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు. అందుచేత కేవలము తమ పనులు నెరవేర్చుకునే ఉద్దేశంతో ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే కానీ, చూడు అతడు నా భక్తునిగా మారి నాతో అతుక్కుపోతూ ఉంటాడు. అయితే ఎవరి విషయం కేవలం నేనే అయి ఉంటానో కేవలం అటువంటి భక్తుడే జ్ఞాని. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తిరిగి మరలా ఇలా ప్రారంభించాడు. ఓ అర్జున, మిగిలిన 3 రకములైన ఏ భక్తుల గూర్చి నీకు చెప్పానో వారు కూడా తమ తమ స్థానాలందు ఉత్తములే, మరియు నాకు కూడా వారు బాగుంటారు. అయితే జ్ఞానులు నాకు అత్యంత ప్రీతములు అవుతారు. మనసు స్థిరమొకటను నిరోధము అని అంటారు. నిరోధ అవస్థ బ్రహ్మానుభూతిని కలిగిస్తుంది. అది సత్యము. మిగిలినంతయు మిథ్య. ఏది నిరంతరము నిరోధ స్థితిలో ఉంటుందో దానికే మంచి మేలు నిశ్చయమే ఉంటుంది. అదొక విచిత్ర స్థితి. అప్పుడు సర్వము బ్రహ్మమయ జగత్తు అవుతుంది. పని చేస్తూ చేస్తూ ఆ పని యొక్క పరాకాష్ఠ స్థితిలో ఉంటుందికే జ్ఞానం అని పేరు. ఎప్పుడు ఆ జ్ఞానం సర్వదా ఉంటూ ఉంటుందో అప్పుడు సమస్తము బ్రహ్మమయం అవుతుంది. ఈ విధమైన కార్యం యొక్క ఉన్నత స్థితిలో నిలిచిన చిత్తము గల యోగి సర్వోత్తమ గతిని పొందును. ఇక అతనికి దేహాభిమానం ఉండదు. నిజం ఏమిటంటే, ఏ విధంగా ఒక నదికి సముద్రంలో కలిసిన తర్వాత తిరిగి అది వెనుకకు వెళ్ళుట ఏ విధంగా అసంభవమో, అదేవిధంగా నా జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత జీవి వెనుకకు రావడం అనేది మర్చిపోవట సత్యము. ఎవరి అంతఃకరణలో ఉత్పన్నమయ్యే అనుభూతి అను గంగ నా స్వరూప సాగరంలో కలిసిపోవునో ఆ భక్తుడిని పూర్తిగా నా స్వరూపమే అని గ్రహించాలి. గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే, అతడు భక్తుడు కాడు, స్వయంగా నేనే. ఇక ఈ విషయాన్ని గురించి ఎక్కువగా వివరించేది ఏమిటి? వాస్తవ విషయం ఏమిటంటే, ఎవరైతే జ్ఞానియో అతడు నా శుద్ధ చైతన్యము మరియు సాక్షాత్తు ఆత్మయే. నిజానికి ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పదగినది కాదు. కానీ ఏమి చేయను? ఏ విషయమైతే చెప్పకూడదో
అదే నేను నీకు చెప్పాను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम। भगवान कहलखिन, तैं केवल अपन कार्य सिद्ध करबाक उद्देश्य सँ जकरा देखू से भक्त बनि कऽ हमरा सँ सटऽ लगैत अछि। मुदा एहन भक्त मात्र ज्ञानीय होइत अछि जकर प्रिय विषय केवल हम ही रहैत छी। फिर भगवान कहलखिन, हे अर्जुन, जे 3 प्रकार के भक्त हम अहाँ के कहलहुँ से सब अपन अपन स्थान पर उत्तम छथि आ हमरो प्रिय छथि। मुदा ज्ञानी भक्त हमरा अत्यंत प्रिय होइत छथि। मौन के स्थिर भऽ जेनाइ निरोध कहलाइत अछि। निरोध के अवस्था ब्रह्म के अनुभूति करबबैत अछि। ओ सत्य अछि आ शेष सब मिथ्या अछि। जे सदिखन निरोध अवस्था में रहैत अछि ओकर कल्याण निश्चित अछि। ओ एक विचित्र अवस्था अछि जतऽ सर्व ब्रह्ममयम जगत भऽ जाइत अछि। क्रिया करैत करैत जखन मनुख क्रिया के परावस्था में स्थित रहैत अछि तकरा ज्ञान कहल जाइत अछि। जखन ई ज्ञान सदिखन स्थिर रहैत अछि तखन सब किछु ब्रह्ममय भऽ जाइत अछि। एहि प्रकार क्रिया के परावस्था में युक्त चित्त योगी सर्वोत्तम गति के प्राप्त करैत छथि। तखन हुनका देहाभिमान नहि रहैत छनि। सत्य ई अछि जे जखन हमर ज्ञान भऽ जाइत अछि तखन मनुख फेर पाछाँ घुरबाक गप तहिना बिसरि जाइत अछि जेना समुद्र में नदी मिल गेला पर ओकर पाछाँ घुरनाइ असंभव भऽ जाइत अछि। ओहिना जकर अंतःकरण में उत्पन्न अनुभूति के गंगा हमर स्वरूप समुद्र में आबि कऽ मिल जाइत अछि तकरा पूर्ण रूपेण हमरे स्वरूप बुझबाक चाही। एतबा बुझि लेबाक चाही जे ओ भक्त नहि रहल, स्वयं हम ही छी। एकर आर कतेक विस्तार कयल जाय। वास्तविक सत्य तऽ ई अछि जे ज्ञानी हमर शुद्ध चैतन्य आ प्रत्यक्ष आत्मा अछि। वास्तव में ई ककरो कहबाक योग्य गप नहि अछि। मुदा की कयल जाय, जे ककरो नहीं कहबाक चाही सएह हम कहि देलहुँ। जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 7 श्लोक 18. भगवान म्हणाले, म्हणून केवळ आपले कार्य पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने तुम्ही ज्याला पाहता तो भक्त बनतो आणि मला चिकटून राहू लागतो. परंतु असा भक्त केवळ ज्ञानी असतो ज्याची आवडती वस्तू म्हणजे फक्त मीच राहतो. मग भगवान म्हणू लागले, हे अर्जुना, मी तुला सांगितलेले इतर 3 प्रकारचे भक्तही त्यांच्या जागी चांगले आहेत आणि मलाही ते चांगले वाटतात. पण ज्ञानी लोक मला अत्यंत प्रिय आहेत. मनाची स्थिरता याला निरोध म्हणतात. निरोधाची अवस्थाच ब्रह्माचा अनुभव देते. तेच सत्य आहे आणि बाकी सर्व काही खोटे आहे. निरोधाच्या अवस्थेत राहणाऱ्यालाच कल्याणाची खात्री असते. जेव्हा एखादी व्यक्ती सर्व ब्रह्ममय जगत बनते तेव्हा ती एक अद्वितीय अवस्था असते. कर्म करताना कर्माच्या अंतिम अवस्थेत राहणे यालाच ज्ञान असे म्हणतात. जेव्हा ते ज्ञान कायमचे राहते तेव्हा सर्व काही ब्रह्म बनते. अशा प्रकारे कर्माच्या अंतिम अवस्थेत एकाग्र योगी सर्वोच्च स्थिती प्राप्त करतात. मग शरीराची जाणीव राहत नाही. सत्य हे आहे की माझे ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर जे परत येण्यास विसरतात, जसे समुद्रात विलीन झाल्यानंतर नदीचे परतणे अशक्य असते, त्याचप्रमाणे ज्याच्या हृदयात माझ्या हृदयात निर्माण झालेल्या गंगेची भावना समुद्रात विलीन होते. त्या भक्ताने समजून घ्यावे की तो पूर्णपणे माझे खरे स्वरूप आहे. त्याने समजून घ्यावे की तो भक्त नाही तर मी स्वतःच आहे. आता हे समजून घे. अधिक तपशीलवार का सांगायचे? सत्य हे आहे की जो ज्ञानी हा माझा शुद्ध चेतनाशील आणि प्रत्यक्ष आत्मा आहे. प्रत्यक्षात हे कोणालाही सांगण्यासारखे नाही. पण काय करता येईल. मी जे बोलायला नको होतं तेच मी सांगितलेले आहे. हे सर्वच खरोखरच थोर आहेत, परंतु मी ज्ञानी भक्ताला माझा स्वतःचाच आत्मा मानतो, कारण स्थिर मनाने तो केवळ माझ्यामध्येच परमध्येय म्हणून स्थापित होतो. इतर 3 प्रकारचे भक्त भगवंतांना प्रिय नाहीत का? हे असे नाही. ते आहेत. ते सर्व थोर आत्मे आहेत. परंतु ज्ञानी पुरुष ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय आहे, कारण त्याचे मन स्थिर आहे. त्याने त्याचे मन ब्रह्मावर स्थित केलेले आहे. त्याला कुठल्याही सांसारिक वस्तूची आवश्यकता नाही, तर फक्त परमात्माच हवा आहे. तो केवळ ब्रह्मालाच परमध्येय म्हणून शोधतो. तो नेहमीच आत्म्यात विलीन होतो.
आणि सत्यात अभ्यासाने परमात्म्याशी एकरूप होतो. म्हणून मी ज्ञानी भक्ताला माझा स्वतःचाच आत्मा मानतो. गुरु स्वाभाविकपणे अशा सेवकांकडे आकर्षित होतो जो पूर्ण मनाने त्याच्या क्षमतेनुसार सेवा करतो. तेव्हा त्याचे प्रेम आणि निष्ठा दृढ होते. तेव्हा मालक एके दिवशी त्याला संपूर्ण मालमत्तेचे व्यवस्थापन सेवकाकडे सोपवू शकतो. मानवी कृतीप्रमाणेच परमेश्वर त्याला स्वतःचे भक्तच मानतो. जय श्री रामकृष्ण. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.